So I think most of, and how about Harshil? Harshil and JS. Yes, sir. Yes, Perfect. sir. Yes, I am Harshil. Oh, okay, perfect. So now we have Harshil, Jayes, Jill, Dhruvil, Nikhil, and Palani Rajan, right? So since it's the introductory class for today, and the course is called Introduction to Control Systems, right? So I would also like to know about your, background. Like, how many of you are comfortable with this course? I mean, like, do you have any background, or you might have seen the syllabus, right? So any one of you, what do you think about this course? I mean, is it completely new for this batch, or some of you have already some background on control? So I would like to hear from Harshil. Harshil, can you respond to it? हर्षिल। Yes, sir. तो हर्षिल, आप लोगों ने ये हाँ सर। आपने ये कोर्स, इसका पहले कोई कंट्रोल से रिलेटेड कोर्स किया है बैचलर्स में? सर कंट्रोल वाला एक सब्जेक्ट आता था, कंट्रोल इंजीनियरिंग, जीटीयू में था ना तब। राइट, राइट, राइट। बी में, बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, परफेक्ट। तब आपने थोड़ा सा इसको पढ़ा हुआ है ना अपने बैचलर्स के टाइम पे? ओके। यस। ओके, so good. I mean, like, but still, we will keep it at a basic level. And आप लोगों ने already syllabus देखा होगा. So let's directly go to the syllabus. Mm, So अभी देख पा रहे हो कोर्स का जो स्लाइड है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect. So this course is called Introduction to Control Systems, all of you know. And my name is Dr. Ajit Kumar, and I've joined this institute from 1st March in the Department of Mechanical and Aerospace Engineering, your department. So this is the syllabus template, and in this you can see we have introduction part of the control system, where we will learn concept of control system and what are the classifications of it. I mean, there are various types of control system, and these are available in various configurations, right? For example, it can be continuous, discrete, SISOs, I mean single input, single output, multiple input, multiple output, and open loop, closed loop control systems. We will also learn about the differences between these, and mainly we'll focus on open loop and closed loop control systems. And then we will see few examples of control systems, effects of feedback, which will come in closed loop control system, and feedback characteristics. So this will be the first module of the course, introductory part. And in the second block, we will learn about the transfer function representation of models and systems. So it's again, it is called block diagram algebra, where we will learn about Meshon's gain formulas, signal flow graphs, etc. And slowly we will move towards response analysis, where we will get to know about the standard test signals like uh, impulse, step, ramp, and also how it responds to the first order system, second order systems, etc. And what are the responses of it. I mean, you will get to know about the transient response and steady state response. And then very popular controller we will introduce in this section, that is called PID controllers. And we will also get to know about the each component of the PID controllers. So don't worry, since if you are not getting few terms, we will elaborate everything. And what are the effects of each component. For example, in PID you have proportional, integrator, and derivative. And also we will learn about steady state errors. And next we will learn about stability analysis in frequency domain, which is also called S domain. So the concept of stability, Routh-Hurwitz stability criteria, Hello, qualitative. sir. Yeah, yeah. Sir, the introduction page is only seen, visible. Only introduction page is visible, right? So you are not moving to the next slide. Yes, sir. Can you see now stability analysis in S domain?
Okay, I think it's a bit slow. It will come to your screen. So, what are is actually what information you are seeing in the screen now? First page. Only first page. I mean introduction. Yes, sir. Okay, and how about now? No change, right? Well, there could be some delay, I assume, because this Yes, sir. It changes to third page. Second. now it's coming, right. So perfect, Jill. So I could hear from you. So yeah, please respond to me so that I'll get to know that what are the things is visible on your screen. So now coming to the stability part, we will discuss about what is stability, and there are certain tools or algorithm to to analyze the stability, and they are Routh Hurwitz, where we do this qualitative stability and conditional stability, and we will also get to know what the limitations of RH stability. Next, we will learn about root locus techniques. I mean, this is also one of the time domain techniques to comment on the stability of the system or stability of the control. And then in the next part, we will, after finishing time domain, we will go to frequency domain analysis, where we will see the introduction of it, like what is meant by frequency response analysis and specifications. And there are certain tools. So tools are like body plot and Nyquist plot. So we will not go in depth. So we will learn only body plot in this course. And if you are interested, we can also introduce Nyquist later. And after finishing this, these are the content generally comes under classical control system, and we will also introduce with the modern control system where state space analysis will come. So we'll learn what are the state and state variables, state models, derivation of state models from the block diagrams, diagonalization, solving the time variant state equations, and STM properties. So these are the sort of like overview of this course. And do you have any comment on it? Is it okay? We can go with this part, or what do you think? Is it heavy? It is light, or something? Your comment? Like, I mean, what do you think? Any one of you? Sir, Nikhil. this is new to us. Okay, Nikhil. So fine. I like it. I mean, when you say that it is new or you know something, then accordingly we can uh, modify our pace of this course, because our target should be to learn the content, not I mean, I don't want to introduce too many things and you don't learn many things. So we will learn slowly, and I'll keep the level of this course at very basic so that everything gets absorbed properly. And these are some of the references you can refer. Book by Nagrath, Norman Nais, and Ogata. And also you have a lot of lecture materials available in the internet, so there is no issue with learning materials, right? And I'll also provide you with some of the lecture notes so that it will be easy to follow this class. So before I start this class, I also want to make it quite flexible. So what do you think about your exams? So are you more comfortable with quizzes, assignments, or class tests, or doing some mini projects? Any feedback or any suggestions? So shall we go with the traditional methods, means two class test, one mid sem, again two class test, and final end sem? Shall we follow the same academic calendar? What is there? Of course, we have to follow, but do you want some modification in it, or we can go with that? Sir, all subject have following like assignment, mid semester, assignment, and end semester. Okay, perfect. So assignment, mid semester, assignment, and end semester, right? So this is comfortable for you, right? For you all, I assume. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, perfect. Very nice. In between, you have any suggestions? So I would like to be flexible with you all. So, and please, I have request that make this course as interesting from your side.
I don't want to put you a lot of pressures because this course is not about getting a good grades or earning the grades. It's about learning something, right? And we will focus on that so that you can learn things from the course. So now, and how about the timing? So all of you got the timetable, Yes, sir. and this class generally starts from I think 11:45 for Wednesday and Thursday, and Monday 10:30. So we will keep that according to the timetable. In case if you feel some modification or some change, please let me know so that we can work on that part also. So we have cleared the grade part, I mean assignment and mid sim, assignment and end sim. Timing also is good for, I assume it's good to all of you. Same timetable. Okay. Now I'll come to the course content. And before that, I also, if it is possible, then I would like to know about your bachelor's background. So I'll start with Harshil. I can see Harshil's name on the list first. So Harshil, what was your background in bachelor? I mean, your BTech degree or BE degree? Harshil, can you hear me? Yes, sir. I did BE Mm-hmm. at the Shankar Shiv Waghela Bapu Institute from GTU. So Okay, and and what? passing year is my 2020 Okay, perfect. And what was your discipline or department? Did you do your fieldwork? mechanical engineering. Mechanical engineering. Perfect. So you are from mechanical. And how about JS? Hello, sir. Yes, JS, please tell me about your, Sir, yeah, I am completed BE Mechanical in SLTIT Rajkot, sir. perfect. So JS is again from mechanical engineering background. How about Jill? Okay, GTU. And now Dhruvil. Hello, sir. Yeah, Dhruvil, tell me please. I completed my BE from Government Engineering College Patan Mhm. from GTU University in Okay, mechanical branch. perfect. So once again, Dhruvil is from mechanical department. And how about Nikhil? Yes, sir. I done my BE in mechanical from Gujarat Technological University. GTU from GT mechanical. Perfect. And now we have Palani Rajan, right? So please correct me that if I am able to pronounce your name correctly. Yes, sir. Palani Rajan. Yeah. So how about you, Palani Rajan? I mean, about your bachelor background, I have done BE Mechanical from LJ Institute. mechanicals again. So we have all the students from mechanical departments, which is perfect. Very nice. So now it will be good that we are on the same page from the same department. So about my background, I would like to tell you that I completed my bachelor's in electronics and instrumentation engineering, master's in instrumentation engineering, and PhD from uh, aerospace engineering with flight mechanics and control specialization. But it should not be an issue. We will give you enough insight to the systems, and we will also try to make it diversify. So when you learn this course, it's not like you are learning only for the specific domain or specific discipline. You will also get some idea about other disciplines, for example electrical systems, mechanical systems, systems from civil engineering, computer science, and some of them will be also from aerospace engineering domain. So in general, I will also try to make it more generic so that you can communicate with other control system engineers, so it will be in sync. So any one of you can define the system. I think most of you have heard the term system, right? Why I'm trying to start with systems, because our course is called control systems, right? And in control system, one second. So as you can see here, we have name of this course as control system. So in this control system, we have two terms, right? Control, sorry, control here and system.
So these two terms. So I'll start with the system. So can one of you define this? I mean, like, just you say the generic idea. What is system actually? So don't worry. I'm not asking a very objective answer. You can tell anything. You can give me some examples or whatever understanding you have about the system. Okay. Okay, perfect. So Jill has said that it's a sort of interconnecting subsystem sort of thing. Am I right? Yeah, others please. Just tell me, don't worry about your answers. Tell me whatever understanding you have about the system because so far we have heard this term so many times. Systems, and systems. Please go ahead, yeah. Tell me, don't worry about your answers, okay? Because it doesn't have one specific answer for the definition. Anything you can tell me. You can tell me about the examples. You can tell me about anything related to daily life or you have seen somewhere. Anyone? Sir, the intercombination of hardwares from which we get specific output. Intercombination of hardware from which we get specific output. Perfect. So Nikhil has given this answer. Very nice, Nikhil. And how about others? Feel free. It's like I don't treat me as your course instructor. Of course, I'm course instructor, but it's more like studying in a group, right? So we will exchange our information. I will try to teach you something, and I can also learn something from your side. So please feel free. Don't get any pressure. I'm not going to give marks or evaluate like that. So just I would like to know your opinion on systems. So others, how about others? So it's a collection of the parts which works on certain goals. Okay, collection of certain parts which works on some goals. Okay, so Palani has said about it. Okay, how about others? Anyone else want to add something? Please feel free again. So what Nikhil Palani said, it's a very concrete and textbook answer. So I also want you to give absolute real-time answer, like I mean daily life answers. So what could be systems? It's not like always we have to understand in terms of textbooks. Of course, it has textbook definitions. We will learn about that also. So can any one of you give me some examples of the system which you either use it or you have seen it? Any idea? And I Sir, don't expect library. yeah, please tell me. Sir, library a system. Okay, perfect. Library system. Very nice. It's a bit different, but it's good answer. Yeah. Another thing. मतलब हम लोग हिंदी में भी बात कर सकते हैं। कोई भी जो आप लोग रोज यूज करते हो, देखते हो, इंस्टीट्यूट में, घर पे, बाहर, कहीं पे भी कोई भी एग्जाम्पल्स हो सकता है। इट्स नॉट लाइक मतलब ये कोर्स क्या है ना कि हम इसको बहुत टेक्निकल नहीं बनाएँगे कि हमें हमेशा टेक्निकल आंसर्स देना है और अच्छे आंसर्स देने हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। हम बेसिक आंसर्स करेंगे। जो छोटे-छोटे एग्जाम्पल्स हैं, वी कैन आल्सो टॉक अबाउट दैट। सर कंप्यूटर सिस्टम डे टू डे यूज जैसे अभी यूज वेरी कर रहे हैं। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो कंप्यूटर सिस्टम हम लोग सब यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो दे कैन आल्सो बी अ सिस्टम्स। वेरी गुड। इसी टाइप का कोई और एग्जांपल्स? एकदम से स्ट्रेट नहीं होना है, मतलब कोई टेक्निकल बात नहीं करेंगे हम लोग। एकदम से बहुत टेक्स्ट बुक टाइप का आंसर्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल आंसर्स। परफेक्ट। सो दीज आर ऑटोमैटिक सिस्टम और ऑटोमोटिव सिस्टम। वेरी नाइस, गुड। और कुछ? तो ठीक है। सर तो एयर अभी कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज वेरी गुड या सो ये हमारे घर में यूज होता है स्पेशली इन द समर। तो ये सारे सिस्टम्स है ना, मतलब अगर हम सिस्टम्स बोलते हैं वी आर सराउंडेड विद द सिस्टम्स। हम कहीं भी जाते हैं हमें कुछ ना कुछ सिस्टम दिखता है या मिल जाता है यूज करने के लिए या यूज हो रहा होता है। और सबके घर में हमारे यहाँ पे
वाटर टैप होता है ना, नल जो होता है पानी वाला, तो कैन वी से दैट वाटर टैप जो है कैन वी ट्रीट दैट एज ए सिस्टम, बोल सकते हैं उसको? Yes, sir. बोल सकते हैं ना? कैन वी से ट्रैफिक light also as a system? One second, I think Maulik wants to join, so we will permit him. So hi Maulik, you are welcome to the class. I think you have joined a bit late, but you are welcome to the class. So Maulik, I asked other students about their bachelor's background. If you can hear me, could you please tell me about your bachelor's background? I mean, are you also from mechanical engineering department? Yes, sir, mechanical engineering. So you completed your bachelor's in mechanical engineering, right? Right. Okay, perfect, Maulik. So far we discussed a bit about course content. What are the contents for these courses? And now we are talking about the system. So our friends, they talked about definitions and they also gave some examples. So we are now currently at the system definition. So very good, and I'm really impressed with the way you are responding. And also, as I said, just tell me something, whatever is there in your mind. Don't worry about technical answers, big answers, and complex answers. Try to make it simple. So even water tap also can be a system. Traffic system also is also a system. And washing machine, can it be a system? Washing machine. Yes, sir. Yes. Yeah, right. So now we got a bit of understanding about the system. So anything you name it, bus can be a system, scooter can be a system, bike can be a system, mobile, computers, library, some of you said. So name anything in the similar line, they are the system. Now the next question comes, how will you identify anything which you can call that as a system? Are you getting? मतलब हम कोई भी चीज को सिस्टम बोलेंगे तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कैसे वो सिस्टम बनेगा? कैन वी कॉल चेयर एज ए सिस्टम? बोल सकते हैं टेबल एज ए सिस्टम, चेयर और टेबल, वाटर बॉटल. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, once you say something or once you define something as system, so what is the basic criteria for it? कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे सिस्टम की तरह? बोलो, मतलब जो भी माइंड में है, यू कैन जस्ट से. एनी वन ऑफ यू? कोई स्पेसिफिक इनपुट पे हमें जो आउटपुट चाहिए वो देता हो एक वेल डिफाइंड प्रोसेस पे. ओके, वेरी नाइस. तो टेबल ने कहा कि उस सिस्टम के लिए स्पेसिफिक इनपुट होना चाहिए और उस स्पेसिफिक इनपुट के लिए इसका कोई आउटपुट होना चाहिए, है ना? वेरी नाइस. सो अगर हम बात करें एक छोटे से एग्जांपल का जो मैंने पूछा था, वाटर टैप का, ठीक है, तो उसमें इनपुट क्या हो सकता है और आउटपुट क्या होगा सिस्टम का? सर इनपुट आप टैब को रोटेट करते हो ना उसका. टैप को रोटेट करते हैं, ओके. तो वो इनपुट हो गया, ठीक है. मतलब जो टैप का नॉब है दैट इज इनपुट, और आउटपुट क्या होगा निखिल? सर नोजल से वाटर नोजल से वाटर. तो डिस्चार्ज. टेक्निकली, हाँ, टेक्निकली थोड़ा सा अगर इसको हम ऐसे बोले तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉब का रोटेशन है वो इनपुट है और वाटर का जो फ्लो है ना वो आउटपुट है. यही है ना? ओके. यस सर. राइट. तो वेरी गुड निखिल. सो व्हाट निखिल सेड, निखिल ने ये बोला हम लोगों को कि ये मान लो कि सिस्टम स्क्रीन पे दिख रहा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ भी. नो सर. No. निखिल थोड़ा सा डिले है एक्चुअली, तो इसीलिए शायद वो लेट से आ रहा था, बट आई थिंक नाउ यू कैन सी. तो मैंने क्या लिखा है ना कि एक ब्लॉग बनाया, एज ऑल ऑफ यू कैन सी नाउ. तो उसमें मैंने क्या क्या लिखा है, आईपी मतलब इनपुट है,
सिस्टम को ब्लॉक में मैंने रिप्रेजेंट किया है और आउटपुट इज ओपी, मैंने ओपी का वो आउटपुट है, तो यही है ना। तो किसी भी सिस्टम के लिए सिस्टम होने का जो क्राइटेरिया है वो 3 एलिमेंट से डिफरेंट मतलब उसका फीचर होगा। पहला तो वो सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए, सेकंड उसमें कोई इनपुट होने चाहिए, इनपुट वेरिएबल्स, एंड जब हम वो इनपुट अप्लाई करते हैं तो सिस्टम को रिस्पॉन्ड करना चाहिए और वो आउटपुट जनरेट करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस अंडरस्टैंडिंग से, या कोई और कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? अभी कंप्यूटर का इनपुट क्या हो सकता है? Mouse, keyboard. वेरी गुड। तो कंप्यूटर का इनपुट क्या हो सकता है? माउस और कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड के थ्रू हम कुछ इनपुट असाइन करते हैं सिस्टम में, और आउटपुट क्या होगा कंप्यूटर का? monitor, राइट। तो मॉनिटर पे जो डिस्प्ले होगा ना, Printer. जैसे मैं, हाँ, वो आउटपुट कैटेगरी में आता है। तो कंप्यूटर एक सिस्टम है जिसके इनपुट, जनरली इसको इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। इनपुट डिवाइस हो गया माउस कीबोर्ड, और आउटपुट डिवाइस में क्या हो गया? मॉनिटर या स्क्रीन एंड Speaker. प्रिंटर Speaker. और स्पीकर ऑल्सो। तो ये समझना बहुत आसान है कि किसी भी सिस्टम में ये फीचर्स होने चाहिए, इनपुट का और आउटपुट का। तो सिस्टम वाला पार्ट समझ में आ गया है ना। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ इंटरैक्टिंग एलिमेंट्स फॉर व्हिच देयर आर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो सिस्टम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि कलेक्शन ऑफ, हाँ स्लाइड मूव नहीं करेगा एक्चुअली, हम उसको ना इंटरैक्टिंग, इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना अभी? No, sir. थोड़ा डिले है, आएगा वो। कलेक्शन ऑफ इंटरैक्टिंग एलिमेंट्स। Sir, it's stuck on slide number 4 still. In slide number 4, what are the things you can see from there? Can you see systems, dynamical systems, mathematical model? ये सब लिखा हुआ। So what is the content of slide number 4? frequency response Okay, उसके बाद नहीं आया, राइट? अभी स्लाइड तो मैंने जो ड्रॉ किया था वो दिखा नहीं क्या? जो इनपुट आउटपुट मैं दिखा रहा था, No, no, sir. नहीं दिखा ना? ओके, कोई बात नहीं। अभी वो फिफ्थ स्लाइड दिख रहा है ना? तो सिस्टम के बारे में मैंने बताया था, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये ब्लॉक है, इसमें इसके इनपुट है, इसका आउटपुट। तो मेरी ड्राइंग दिख रही है? लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, आई थिंक थोड़ा डिले। अभी स्लाइड में मैंने जो लिखा वो दिख नहीं रहा है ना वहाँ पे? नहीं नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, सिर्फ स्लाइड दिख रहा है, राइट? ओके, तो ये थोड़ा सा इश्यू आ रहा है इसमें डिस्कार्ड करके। जैसे मैं प्लेन स्लाइड में आता हूँ, अभी वो दिख रहा है प्लेन स्लाइड, मतलब एकदम से ब्लैंक। yes sir Yes, sir. ओके, परफेक्ट। तो उसमें मैंने लिखा एक टर्म सिस्टम, ठीक है? राइटिंग नहीं आ रहा है क्या उसमें, या पेन? वो स्लाइड जो वो पूरा ब्लैंक का ब्लैंक ही है ना? ओके, तो थोड़ा सा इश्यू है अभी भी, टेक्निकल इश्यू में जो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। कोई बात नहीं, तो आज थोड़ा हम मैनेज करेंगे इस तरह से। So in the fifth slide, so we will talk about some of the concepts before we get into the real stuff. Okay.
तो अभी क्या है कि उस स्लाइड्स में यू कैन सी देन द फर्स्ट टर्म इज सिस्टम, राइट? ऑल ऑफ यू कैन सी। सेकंड वाला है डायनामिकल सिस्टम्स, थर्ड मैथमेटिकल मॉडल है, एंड देन वी हैव सिस्टम वेरिएबल्स। उसके अंदर आता है कंट्रोल इनपुट, नॉइज इनपुट, सेंसर आउटपुट, परफॉर्मेंस आउटपुट, एंड देन स्टेट वेरिएबल्स। इतना तो क्लियर है, सबको दिख रहा होगा, Yes, sir. राइट? तो सिस्टम को हम लोगों ने समझ लिया कि सिस्टम क्या होता है कि it is in collection of interacting elements for which there will be relationship of between cause and effect, इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप होगा। तो जैसे हमने वाटर टैप का बात किया, कंप्यूटर का बात किया, और कार के लिए भी हो सकता है, फ्लाइंग, अगर एयरक्राफ्ट के लिए भी हो सकता है। एयरक्राफ्ट के लिए इनपुट क्या हो सकता है? पायलट जो अप्लाई करता है स्टिक इनपुट ना, वो इसके लिए इनपुट होगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर पायलट ने कोई, जैसे सपोज थ्रॉटल अप्लाई किया, तो उससे क्या होगा कि या तो उसका स्पीड घटेगा या बढ़ेगा, चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा। तो वो हो सकता है। आप लोगों ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल का नाम सुना है क्या, यूएवी के बारे में, किसी ने? What, sir? यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, नहीं सुना है? ये No, जो sir. ये जो ऊपर में मतलब छोटा छोटा एयरक्राफ्ट फ्लाई होता है ना, एयरक्राफ्ट के मॉडल्स जो फ्लाई करते हैं, Yeah, they are used in military purposes. yes, they are also used in not only in military purposes, but they are of course used in military purposes. But अभी क्या होता है Controlled by ना, a remote. आजकल कोई शादी अटेंड करोगे आप लोग ना, तो ये बहुत चल रहा है कि ड्रोन के थ्रू वो लोग इमेज कैप्चर कर रहे हैं। मूवी के शूटिंग्स में आप देखोगे Yes, कि yes, मूवी yes. के शूटिंग्स ना वो कैमरा के थ्रू किया जाता है। तो वो जो ऊपर जो फ्लाइंग होता है, वो उसको ड्रोन बोलते हैं, ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो वो फ्लाई कर रहा होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और उसके ऊपर ऑन बोर्ड कोई पायलट नहीं होता है। जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं उसको फ्लाइंग करने के लिए पायलट की जरूरत होती है, राइट? और इस तरह के जो फ्लाइंग व्हीकल्स होते हैं ना, उसको आप ग्राउंड से फ्लाई कर सकते हो। आपके पास एक ट्रांसमीटर और रिसीवर रहेगा, वहां से कमांड जैसे आप दोगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइस रिस्पॉन्ड करता है। तो उसको हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं, क्योंकि वो पायलटलेस फ्लाइंग है, उसमें कोई पायलट नहीं होता है, छोटा साइज का होता है। एंड दे आर कॉल्ड आरसी फ्लाइट आल्सो, रिमोट कंट्रोल्ड फ्लाइट। तो वो भी एक सिस्टम है, आई मीन ग्राउंड पे जो उसको उड़ा रहा होता है, ही और शी गिव सर्टेन इनपुट, एंड एयरक्राफ्ट और जो ड्रोन है वो रिस्पॉन्ड करता है उसके टर्म्स में। अभी डायनामिकल, ये तो सिस्टम वाला पार्ट हमने क्लियर कर लिया। वी विल गो टू दिस हाईलाइट। सो हमने ये पार्ट क्लियर किया ना, सिस्टम वाला। सो अनदर term comes which is dynamical system. So how many of you know about the dynamic, how many of you have heard about this dynamical systems? Dynamical Spring or system, mass spring mass systems. very nice. I am very happy to hear this example, spring mass damper system. तो वो एक dynamical systems है। Anything else? हम ट्रेन को बोल सकते हैं क्या, वो सिस्टम है? जो ट्रेन है, रेलगाड़ी, कैन बी कॉल इट एज सिस्टम? Yes, sir. ओके। तो देखो डायनामिकल सिस्टम्स में हम सिस्टम्स में क्या देखे थे कि इनपुट और आउटपुट जो था ना, वो होना चाहिए, और उसका इनपुट का जो भी चेंज होगा वो उस पे आउटपुट पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो डायनामिकल सिस्टम्स में क्या होता है कि उसके जो वेरिएबल्स होते हैं, आई मीन इनपुट आउटपुट, वो टाइम के साथ चेंज करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वी कैन कॉल देम एज डायनामिकल सिस्टम, जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स, वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट है, उसके भी इनपुट्स जो होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट है, तो दे आर कॉल्ड डायनेमिकल सिस्टम। तो समझ में आया? कुछ सिस्टम होते हैं जो स्टैटिक है, दे डोंट चेंज विद टाइम, और कुछ होते हैं जो कि डायनेमिकल सिस्टम्स हैं। अनदर थिंग कम्स एज मैथमेटिकल मॉडल। सो कैन एनीवन टेल अबाउट दैट, व्हाट इज मैथमेटिकल मॉडल? कोई भी बताओ, जो भी मतलब
कुछ भी जो भी माइंड में आंसर है, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी स्पेसिफिक और इंटेलिजेंट आंसर्स, छोटा छोटा आंसर करो, मतलब जो भी समझ में आता है, so that will be nice. So I hope all of you have heard this term, mathematical model. So what is mathematical model? And don't worry about your answers, tell just whatever is there in your mind. So कोई भी सिस्टम को मैथमेटिकल फॉर्मूला से डिनोट करना. So very good. Palani Rajan said कि कोई भी सिस्टम को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से डिनोट करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं, so that is called mathematical model. So I hope all of you would agree with Palani because she gave exact answers. So कोई example, can you tell any examples for uh, some of you said about spring mass damper system. तो उसका जो मैथमेटिकल मॉडल है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है, एम एक्स डबल डॉट प्लस बी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू एफ टी. आई डोंट नो दिस इज नॉट वर्किंग व्हेन मैं माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई थिंक इट्स एम एक्स डबल डॉट प्लस बी एक्स डॉट प्लस सी एक्स और के एक्स इक्वल्स टू, ऐसा किसी ने मतलब वो मैं जो लिख रहा हूँ बिल्कुल दिख नहीं रहा स्क्रीन पे कुछ भी. No, sir. ओके. बट स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम का एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है ना सेकंड ऑर्डर में, एम एक्स डबल डॉट प्लस बी एक्स डॉट प्लस के एक्स. हैव यू सीन और हैव यू read somewhere in the textbook? नहीं. ओके, कोई बात नहीं. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास टाइम्स एक्सेलरेशन? Yes, sir. ओके. Yes, sir. तो ये भी तो एक मैथमेटिकल मॉडल हुआ ना, फोर्स जो हम पहले पढ़ते थे 10th में या 12th में, ब्लॉक डायग्राम वाला. तो फोर्स अगर उसमें सिर्फ इनर्शियल एक्सेलरेशन है तो वी यूज्ड टू रिप्रेजेंट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, मतलब उस ब्लॉक का थ्रू दिस फॉर्मूला, व्हाट Palani Rajan said that any mathematical representation of the system is called mathematical model. तो उस पर्टिकुलर सिस्टम का mathematical representation through formula or through any physical relationship, they are known as mathematical model of the system. I mean, whatever system we have, if we are able to represent that system in terms of mathematical formula or mathematical notation, they are known as mathematical model. तो ये वाला part clear हो गया. So now we are good with system, dynamical systems, mathematical model. Now we have system variables. So under system variables we have input, which is generally known as control input and noise input. So can any one of you tell that in these two inputs, control and noise, which are known and which are unknown? Sir, control मतलब हम खुद करते हैं तो वो known होते हैं. Very good, very good. Okay. And how about noise? Unknown. Okay, so what Nikhil and Jill said, Jill responded to it. He said, noise तो unnecessary होता है, and we also don't know the source कि वो noise कैसे आ रहा है. तो अभी जो हम एक एग्जांपल का बात कर रहे थे वाटर टैप सिस्टम को, उसमें नॉइज हो सकता है क्या? उसमें नॉइज का क्या काम होगा या कैसे उसमें हम नॉइज को समझेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड. सो जैसे नॉइज एक ऐसा चीज है जो कि अनवांटेड है, अगर टैप में वो लीकेज है तो दैट कुड एक्ट एज नॉइज एंड वी डोंट नो इट. और उसमें कंट्रोल इनपुट क्या होगा, जो नॉब का रोटेशन है वो कंट्रोल इनपुट है, वो हमें पता रहता है कि हम कैसे रोटेट कर रहे हैं और कितना रोटेट कर रहे हैं. So control input for that example would be rotation of the knob, and noise input for the that example would be noise, leakage of this system or leakage of the tap. How about the sensor output? Can any one of you give example of any sensor output? Sir, water pump होता है ना, Okay. अंडरग्राउंड वो बंद हो जाता है जब लेवल Right. होता है, कट ऑफ हो जाता है.
ओके, तो तो राइट, तो पार्शियली राइट है जिल। तो उसके पहले मैं ये पूछूंगा, व्हाट इज सेंसर? सेंसर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेंसर? सेंसर क्या होता है? सेंसर तो सबने सुना होगा कि सेंसर Detect physical quantity, sir. Sensor. डिटेक्ट्स फिजिकल क्वांटिटी। ओके, गुड। उसका कोई एग्जांपल है क्या? हैव यू सीन एनी एग्जांपल फॉर इट? अभी अभी ट्रैफिक लाइट भी सबने देखा होगा, एसी भी देखा होगा, तो जो वो डिस्प्ले आता है या इनफैक्ट एसी में वो नंबर्स आते हैं ना, 22 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या है डिस्प्ले, और वो कैसे आता है? एग्जैक्टली, सो टेम्परेचर सेंसर also a kind of sensor, तो जिसमें वो क्या करता है, एज यू सेड, वो फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करता है या उसको मेजर करता है। तो उसमें क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी हमारे हमारे लिए टेम्परेचर होगी, उसको वो सेंस किया। तो सेंसर आउटपुट का मतलब होता है कि व्हेन इट कन्वर्ट्स फिजिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जैसे हमारा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या उसका डिस्प्ले आता है एसी के केस में, ट्रैफिक लाइट के केस में, इवन वॉशिंग मशीन के केस में भी आता है कि टाइमर्स, वो सारे जो होते हैं वो सेंसर डिस्प्ले होते हैं। और इट कैन बी टेम्परेचर सेंसर, फ्लो सेंसर्स, प्रेशर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर्स, और एनी काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो वो सेंसर आउटपुट हो गया। और व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस आउटपुट? तो उस तरह के जो डिवाइस के आउटपुट होंगे वो सेंसर आउटपुट होंगे। एंड हाउ अबाउट परफॉर्मेंस आउटपुट, सिस्टम का परफॉर्मेंस? कितने लोगों ने सुना है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे आपने कोई कार डिजाइन किया और कुछ भी सिस्टम डिजाइन किया, तो हम वो देखते हैं ना ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। तो इस तरह के जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड उसके आउटपुट होते हैं ना, दे आर नोन एज परफॉर्मेंस आउटपुट। वो कंट्रोलेबल है कि नहीं, कंट्रोल के टर्म्स में हम बोलते हैं कि वो कंट्रोल हो सकता है कि नहीं। स्टेबिलिटी के टर्म्स में हम बोलते हैं स्टेबल है या अनस्टेबल है। और परफॉर्मेंस जैसे वॉशिंग मशीन का है कि ड्राई है कि वेट है, जो कपड़ा सूख जाता है फिर वो कितना क्लीन है नहीं है, ये सारे परफॉर्मेंस आउटपुट के अंदर आते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट कम्स स्टेट वेरिएबल्स। तो कैन एनी वन ऑफ यू डिफाइन दिस? और कितने लोगों ने सुना है पहले स्टेट वेरिएबल्स के बारे में? Any one of you have heard this term, state variables? No, sir, no. ओके, वेरी गुड। तो अगर हम इसको बहुत ही बेसिक तरीके से देखें, तो अभी जब हम वाटर टैप की बात कर रहे थे, तो सम ऑफ यू सेड नॉब सेटिंग, वाटर फ्लो, तो ये सब क्या है? मतलब इनपुट आउटपुट ऑफ कोर्स है, बट इसको भी हम समझ सकते हैं स्टेट वेरिएबल के टर्म्स में। स्टेट वेरिएबल्स का डेफिनेशन ऐसा होगा कि एनी वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल्स which defines the state of the system, which defines the system। तो वाटर टैप के केस में कौन कौन सा स्टेट हो जाएगा? कैन वी से वाटर टैप के केस में नॉब का रोटेशन जो है वो भी स्टेट वेरिएबल है, और फिर जो पानी नीचे गिर रहा है, वाटर फ्लो जो है, दे कैन आल्सो बी अ स्टेट वेरिएबल, राइट। और दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो पानी का टैंक में कई बार वो सेंसर्स लगे होते हैं ना, लेवल सेंसर्स। तो उसमें क्या होता है कि लेवल का वेरिएशन आएगा, लेवल उसका चेंज होगा। जैसे मान लो कि मैंने 100 मीटर पे रखा, 100 मीटर के ऊपर जाता है तो कुछ कई बार अलार्म सेट होता है, तो वो अलार्म बजने लगता है, लाइक इट इज ओवरफ्लोइंग द सिस्टम। तो वो भी एक तरह का स्टेट, तो उसके लिए स्टेट वेरिएबल्स क्या होगा उस सिस्टम के लिए, वाटर टैंक के लिए? एनीवन? देखो उस एग्जांपल में वाटर टैंक के लिए जो वेरिएबल होगा स्टेट वेरिएबल,
दैट इज लेवल। तो लेवल जो है वो डिफाइन कर रहा है उसके क्वालिटी को। तो स्टेट वेरिएबल्स आर लेवल इन दैट केस। अगर टैंक से वाटर का फ्लो जा रहा है तो फ्लो रेट जो है वो भी स्टेट वेरिएबल हो सकता है। फर्नेस का नाम सुना है कि सबने? फर्नेस बहुत तरह के हो सकते हैं ना। Yes, sir. तो फर्नेस का कोई एक स्टेट वेरिएबल अगर मुझे पूछना हो आप लोगों से तो क्या होगा उसका वेरिएबल? टेम्परेचर। Temperature. वेरी गुड। और अभी टाइम चल रहा है समर। समर का स्टेट वेरिएबल क्या होगा? समर को मैंने सिस्टम बना दिया तो उसका स्टेट वेरिएबल क्या होगा? वो भी टेम्परेचर होगा ना, हाई टेम्परेचर। Yes. और बारिश का अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेशन है, कितना का बारिश हुआ वो सब हो गया। तो हर एक सिस्टम जो होता है ना उसके रिलेटेड जो वेरिएबल्स होते हैं उसको स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, राइट। तो ये हमने सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत देखा और सिस्टम के रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स हैं वो हमने सीखा। तो फर्स्ट वी डिफाइंड सिस्टम, डायनामिकल सिस्टम, मैथमेटिकल मॉडल, स्टेट सिस्टम वेरिएबल्स में कंट्रोल इनपुट, नॉइज इनपुट, सेंसर आउटपुट, परफॉर्मेंस आउटपुट और स्टेट वेरिएबल सिस्टम होंगे। अब हम आते हैं अपने कोर कोर्स की तरफ जो कि है कंट्रोल सिस्टम। तो अभी हम कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सिस्टम में हमने ये सीखा कि इट इज इंटरकनेक्शन ऑफ सब elements or different elements which are combined together, and when we change input or we give certain excitation to the system, it responds in terms of the output। so वो हम system बोलते हैं। अभी control system में हम आ रहे हैं। और before I start or go to control system detail, we would also like to know three major concepts। अब इसमें लिखना नहीं हो रहा है। Identification, simulation and control, these are the three terms under system। आप लोग स्लाइड को देख पा रहे हो? हेलो, नो। स्लाइड नंबर क्या चल रहा है अभी? 5, स्लाइड नंबर 5, 6. 6 आया ना। तो 6 में मैं लिख रहा हूँ वो दिख नहीं रहा आप लोग, है ना। आप लोग कौन सा डिवाइस यूज करो, फोन या लैपटॉप? सम ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू आर यूजिंग लैपटॉप और कंप्यूटर? ओके। तो ये जो पॉइंटर है अभी जैसे मैंने इसमें लिखा आइडेंटिफिकेशन, तो मैं भी उसमें लिख रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन, किसी को दिख रहे हो? No, sir. ओके। तो ये इश्यू अभी है इसमें, कोई बात नहीं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग। मैंने सोचा कि स्लाइड ना दिखा के इंटरेक्शन, इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम एक साथ कर सकते हैं बिल्कुल। तो आइडेंटिफिकेशन है, सिमुलेशन एंड कंट्रोल। सो व्हाट आर द थ्री थिंग्स आर देयर? आइडेंटिफिकेशन, सिमुलेशन एंड कंट्रोल। और सिस्टम को डिफाइन करने के लिए वी हैव सिस्टम, उसके लिए इनपुट है, लेट्स से इट इज x of t, y of t, और इसको कर लेते हैं f of x। तो किसी सिस्टम से रिलेटेड वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं इनपुट, आउटपुट और सिस्टम का मैथमेटिकल नोटेशन, जो हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए सीखा। तो मान लो कि अगर हमें सिस्टम और इनपुट के बारे में इंफॉर्मेशन, आई मीन आई हैव ऑलरेडी
a mathematical model of the system, and also we know the input. तो आउटपुट के एनालिसिस के लिए जो थ्योरी है और जो प्रोसेस है, that is called the simulation, right? So please understand like this. So we have xt as input, yt as output, or let's say f of x वो सिस्टम है और सिस्टम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो once we have input information for the input and the mathematical model f of x, so next if you want to find y of t, then this comes under the category of simulation. अगर हमें xt पता है, yt पता है, but we don't know the system, so that is called identification. And when we know about system and output, but we don't know about the input, that comes under the problem of control. So control में हम क्या करते हैं कि on the basis of output and function, we try to design a input so that we get desired output. तो वो हो गया. अभी हम आते हैं फिर से वही बेसिक एग्जांपल पे, वाटर टैप के केस में. तो वाटर टैप के केस में अगर हम कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिस्टम क्या है उसमें? वाटर टैप इटसेल्फ इज अ सिस्टम, राइट? और उसका आउटपुट क्या हो सकता है? एनी वन ऑफ यू? वाटर टैप का आउटपुट क्या है? वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. Discharge of water. ओके, सो फ्लो ऑफ वाटर अगर हम बोले तो उसका इनपुट क्या हो सकता है? नॉब का Knob. रोटेशन होगा, है ना? तो मान लो कि अभी हमने ये डिसाइड कर दिया कि उसका जो फ्लो होगा दैट शुड बी सम लीटर पर मीटर क्यूब, सॉरी मतलब मान लो कि इसको क्यू कर दिया, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस यूनिट. अगर उसका इनपुट हमें क्यू अचीव करना है तो प्रॉब्लम क्या होगा कि नॉब का रोटेशन कितना होना चाहिए जिससे हम उसको अचीव कर सके क्यू को. तो ये जो होता है ये कंट्रोल सिस्टम का फंक्शनैलिटी है और कंट्रोल सिस्टम का जॉब है टू गिव यू द रिक्वायर्ड आउट इनपुट टू अचीव द पर्टिकुलर आउटपुट, राइट? तो इस केस में जैसे वाटर टैप के केस में हमने ऑलरेडी अगर सेट कर दिया कि मुझे इतना फ्लो रेट चाहिए, तो देन वी हैव टू वर्क ऑन द कंट्रोल सेटिंग्स. और ये हो गया. एयरक्राफ्ट के केस में भी वही होता है कि अगर मान लो कि हमने डिसाइड कर दिया कि एयरक्राफ्ट को 100 मीटर पे फ्लाइंग कराना है, इतना हाइट पे, तो व्हाटएवर कमांड पायलट विल अप्लाई दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल. तो वो एयरक्राफ्ट के केस में हो गया. अभी इवन फर्नेस के केस में वही होगा कि कितना टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को खुद से प्रीसेट कर सकते हैं कि इतना टेम्परेचर हमें चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फर्नेस का टेम्परेचर अचीव करते हैं. तो उसके केस के लिए हो गया. और similarly if we know the information about the output and also the system, we can design the input. तो पूरे कोर्स में हम यही सीखेंगे, how to design a control system, what is input and how it helps in achieving stable performance. तो अलग अलग सिस्टम के बारे में बात करेंगे and we will learn in the course. और उसके पहले कुछ बेसिक्स है वो भी हम सीखेंगे. तो आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में. So a control system can be classified in various ways. तो पहला कैटेगरी है continuous and discrete. तो can any one of you say or have any idea about what is continuous and discrete system? मतलब क्या हो सकता है? continuous time control system क्या होगा और discrete time control system क्या होगा? Any one of you? जो भी है माइंड में. All of you have heard these two terms, continuous or discrete? No, sir. No, sir. Okay. तो कंटिन्यूअस सिग्नल में क्या होता है ना कि अगर सिग्नल कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस सिग्नल होता है.
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी से कंटिन्यूअसली वोल्टेज आ रहा है, देयर इज नो चेंज इन इट, तो वो कंटिन्यूअस सिस्टम सिग्नल हो गया। और डिस्क्रीट में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल एक होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, उसमें क्या होता है कि सिग्नल सर्टेन इंटरवल पे जाता है, सिग्नल जाता है फिर रुक जाता है, फिर जाता है फिर रुक जाता है। जैसे किसी ने डिजिटल वॉच देखा होगा तो वो डिस्प्ले जब आता है तो उसमें भी कुछ लैग होता है ना। जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर की हम बात करें तो यू कैन सी द डिस्प्ले एट द लैग ऑफ 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो क्या करेंगे, हर एक सेकेंड में वो अपना डिस्प्ले चेंज कर रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके आ रहा है, बट इन द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। तो उस तरह के जो सिग्नल्स हैं जो डिजिटल में आते हैं जनरली वो डिस्क्रीट होते हैं, और जो एनालॉग में आते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, राइट। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि जिस कंट्रोल सिस्टम का इनपुट आउटपुट कंटिन्यूअस फ्रेम में हो और उसका सिग्नल कंटिन्यूअस हो, सो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस कंट्रोल सिस्टम। और डिस्क्रीट में अगर इनपुट आउटपुट का सिग्नल डिस्क्रीट है तो वो डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम होता है। सो इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। और SISO का नाम किसने सुना है और MIMO को किसी ने? किसी ने सुना है SISO? तो इसका क्या होता है, SISO का मतलब होता है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, और MIMO का क्या होता है मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। तो किसी भी कंट्रोल सिस्टम्स के अगर बहुत सारे इनपुट्स हैं तो उसको MIMO की कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब मल्टीपल इनपुट्स होंगे और मल्टीपल आउटपुट होंगे तो वो MIMO सिस्टम है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है। और सिस्टम का सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट है, जैसे वाटर टैप है। वाटर टैप में सिंगल इनपुट क्या है कि वाटर का नॉब मैंने वेरी किया और उसका जो चेंज दिखेगा वो वाटर फ्लो में दिखेगा, सिर्फ फ्लो रेट में। तो दैट इज कॉल्ड SISO सिस्टम, साइसो सीसो सिस्टम बोलते हैं उसको। और MIMO में क्या होता है कि मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट के साथ ये कॉन्फ़िगर होता है। तो उस जैसे एयरक्राफ्ट के केस में क्या होता है, एयरक्राफ्ट के केस में जब पायलट अप्लाई करता है तो वो मल्टीपल इनपुट अप्लाई करता है। वो एक इनपुट अप्लाई करता है जिससे एक पर्टिकुलर हाइट तक रीच कर सके, एक इनपुट अप्लाई करता है जिससे वो पर्टिकुलर स्पीड को रीच कर सके। तो वो मल्टीपल इनपुट एक साथ ट्राई करता है टू अचीव मल्टीपल आउटपुट। तो इस केस में क्या होता है कि जो थ्रॉटल है और उसके जो पिच स्टिक हैं और बाकी जो अलग पायलट का कमांड है वो इनपुट हो गया। पायलट एक साथ 2-3 इनपुट अप्लाई करता है टू अचीव दो 2-3 specific output. So first output can be to reach at certain height. जैसे हम कमर्शियल एयरक्राफ्ट की बात करें तो उसका जनरली वो फ्लाई करता है 33,000 36,000 फीट पे, और इसका स्पीड अचीव करना होता है। तो जैसे वो लेस देन 1 मार्क, अगर वो फाइटर की कैटेगरी में नहीं है तो उसका जो स्पीड होगा 300 या 200 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे वो फ्लाई करता है। सो टू अचीव 200 मीटर पर सेकंड और एट 33,000 फीट वी हैव टू अप्लाई मल्टीपल इनपुट। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल इनपुट होते हैं मल्टीपल आउटपुट होते हैं, दे आर कॉल्ड मीमो। ओपन लूप वर्सेस क्लोज लूप, ये क्या होता है कि अगर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम इस तरह का डिजाइन हुआ है जिसमें उसका आउटपुट का फीडबैक हमको पता नहीं है, मतलब क्या हो रहा है वी डोंट नो अबाउट दैट, सो कंट्रोल डज नॉट गेट द फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट, दैट इज कॉल्ड ओपन लूप। और अगर कंट्रोल को आउटपुट का फीडबैक मिलता है तो वो होगा क्लोज लूप। तो इसका एग्जांपल कोई बता सकता है क्लोज लूप और ओपन लूप का? एनीवन? एयर कंडीशनर और क्लोज लूप सिस्टम। एयर कंडीशनर, वेरी गुड। एयर कंडीशनर क्लोज लूप सिस्टम है, उसमें सेंस होता है टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को चेंज करता है। और किसी ने वो स्टिक को अपने हाथ पे खड़ा किया है क्या, जैसे इन्वर्टेड पेंडुलम, नॉट इन्वर्टेड पेंडुलम, जैसे पेन को हम अगर ऐसे पकड़ेंगे ना हाथ पे, इसको खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा कि अगर हम आंख खोल के कर रहे हैं, मतलब आई एम गिविंग यू द फिजिकल एग्जांपल। तो सपोज आई
is one kind of sensor जो कि देख रहा है. तो अगर stick को if we try to stabilize in our fingertip without seeing, आँख अगर हमने बंद कर दिया तो ये ओपन लूप सिस्टम होगा. जैसे हमने आँख खोला and we try to stabilize the stick on our hand or finger, that is called the closed loop system. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टिक हमारे हाथ में है या फिंगर टिप पे है, we can see the orientation of it और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मॉडिफाई करते हैं अपने हैंड के पोजीशन को. तो वो एक तरह का क्लोज लूप सिस्टम हो गया फिजिकली. और अगर हम बात करें एडवांस कंट्रोलर की, तो एयरक्राफ्ट में जो कंट्रोलर होते हैं, जैसे मान लो कि हमें 33,000 फीट का हाइट अचीव करना है, तो पायलट विल सी इन द डिस्प्ले. सेंसर हमेशा क्या करता है कि उसको डिस्प्ले करता रहता है कि अभी वो 2000 फीट पहुंचा, 2500 फीट पहुंचा. तो उस तरह का फीडबैक जो है वो कंट्रोलर में लगातार जा रहा है, और उस तरह के फीडबैक के बाद कंट्रोलर जो एक्शन लेता है, दैट इज कॉल्ड द क्लोज लूप. ओपन लूप में क्या होता है, जो फीडबैक उसको मिलता नहीं है. जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर है, ट्रैफिक कंट्रोलर में ऑलरेडी टाइमिंग सेट रहता है कि 60 सेकंड का 60 सेकंड का, 80 सेकंड का, 90 सेकंड का, वो टाइम ऑलरेडी उसने सेट कर दिया है. उसके बाद कोई फीडबैक उसमें नहीं रहता है. तो ट्रैफिक कंट्रोलर इज ओपन लूप सिस्टम, एयरक्राफ्ट कंट्रोलर इज क्लोज लूप सिस्टम, राइट. तो इस तरह से हमने सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया 3 डिफरेंट डायरेक्शन में: कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, SIOSO मतलब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ओपन लूप एंड क्लोज लूप, राइट. तो आज हम इतना ही करते हैं. आज इंट्रोडक्टरी क्लास था, एंड आई विल ट्राई टू सेंड यू द नोट्स सिंस आई वाज ट्राइंग टू राइट समथिंग एंड यू वर नॉट एबल टू सी. वी विल वर्क ऑन इट कि कैसे इसको और भी इंटरेक्टिव कर सकते हैं. तो एनी डाउट फ्रॉम दिस पोर्शन अभी जो हम लोगों ने आज कवर किया? कोई डाउट है इसमें? कुछ पूछना है किसी को? No, sir. Okay, very good. So we have learned systems, dynamical systems, mathematical model, systems variables में हमने सीखा इनपुट आउटपुट क्या होता है, स्टेट वेरिएबल क्या होता है. We also learned about control system, इसका philosophy क्या है, and we learned about classifications: continuous, discrete, single input single output, multiple input multiple output, closed loop and open loop. ओपन लूप क्लोज लूप को थोड़ा और हम एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो अभी के क्लास से कोई इशू नहीं है ना, मतलब सबको क्लियर है. तो विद दिस आई वुड एंड क्लास हियर सिंस टाइम इज आल्सो 2. थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो गया. अभिषेक से लीव पे है वो. तो नाउ वन सेकंड, जस्ट मैं मीटिंग के बाद बात करता हूँ. So we can leave now this meeting and we will meet on next Wednesday. Okay. So thank you so much to all of you. Let's meet on Wednesday